Basically, we know that the option premium, is basically can go up and down with reference to the strike price. So in case of options, call options, put option, if you buy an option, you have to pay a premium, isn't it? Lakshya, please hold on. So when you buy an option, you have to pay a premium. Okay, the person who buys the option has to pay the premium, and the person who writes the option, he will receive the premium. Okay, do you remember that? The option writer is going to receive the premium, and option buyer is going to pay the premium. So now, if you are an option buyer, you can be either a call buyer or a put buyer. So if you are a call buyer, you have to pay a premium. Put buyer has to pay a premium, and call receiver and call writer or put writer would actually receive the premium. Okay, fine. अब call buyer है, he's a bullish or a bearish guy? Bullish. Because if you buy a call, you expect the share price to go up, isn't it? Now, if the call buyer is bullish, that means call writer is bearish. एक आदमी bullish है, एक आदमी bearish है. So the call buyer says, I want to buy the share at a certain price. Whereas the call writers say, okay, I'll sell the shares to you at a certain price. Okay, because the call buyer thinks the share price will go up, and he is going to make money. So he's bought the share at a certain strike price which he has chosen, and if the share price goes up, for example, I'm just going to अच्छा लिखने के लिए तो बोर्ड है नहीं है, so हाँ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो just it is going to be there. I'm just giving you, I'm teaching you whatever I have taught earlier also. Okay, I'm just revising a little bit so that it falls in your mind again. So a call buyer, he chooses what? A strike price. उसको एक strike price चुननी पड़ती है. जैसे suppose he wants to buy Reliance, and Reliance is currently say at 2,700 in the cash market. अगर आपने Reliance खरीदना है तो आज उसका प्राइस कितना है? Just check the price of Reliance. What is the price of Reliance? Check the price of Reliance both in the cash market as well as in the future market. So option is yours. आपको भी market में जाके check कर लीजिए. 2746 cash market. And what is the price in the futures market? Say, I mean, if it's October now, so either October price, November price, there are 3 months which are open. So what is the price of Reliance in the cash market? आपका क्या नाम है मैडम? हाँ? नीति? कीर्ति, हाँ कीर्ति क्या प्राइस है? रिलायंस का क्या प्राइस है आज की डेट में? हाँ just show me the price. 2754. So 2754 is the price of Reliance. So that is the cash price. Okay, fine. So but you are going to buy it in the futures market. Okay, the future market will be slightly different than the cash price. Okay, and will the future price be higher or lower? काशवी, अगर रिलायंस का प्राइस 2754 है, 2754 is the price of Reliance in the cash market. But if you look at the future price, normally what should be the price in the future? Is it will be more or less than the cash price? नॉर्मली क्या होना चाहिए? जैसे आप देखते हो कि आज 2754 का प्राइस है रिलायंस का, बट जब फ्यूचर में जाते हो तो क्या आपको प्राइस ज़्यादा दिखेगा या कम दिखेगा? क्या ज़्यादा दिखेगा? ज़्यादातर. ओके, इट कैन इवन लेस ऑल्सो. फाइन, बिकॉज देयर इज अ कॉस्ट ऑफ कैरी. Fine, as I told you that in case of commodities, you have to pay the godown charges as well as the interest, because you are going to supply the goods after say a certain period. So the future price is always more, isn't it? आप हमें याद रखो, if you are trying to buy certain thing, like suppose you are buying mangoes in the month of June, they'll cost you say 100 rupees a kg, for example. But if you buy the mangoes in the month of December, in the month of June itself, then the guy will say 200 rupees, because he is going to buy at 100 rupees now and put it in a godown and invest some money, because he's going to buy all the mangoes for you now. So some interest costs and the godown charges is going to add up to the total price prevailing in the spot and going to give you at a higher price. Okay, so normally in commodities, the things become clear that the future price is always more than the current price. Similarly, in stock market also, for stocks also, the future price will be higher. Fine. Okay. So there is a cost of carry, there is an interest and dividend function of this thing. So if you go into the options market and you are a call buyer,
So do you have to pay something when you enter into a trade? और आपको क्या चुनना पड़ता है? What you have to, what price you are going to buy Reliance? No, how do you going to select the Reliance price? किस प्राइस पे आप Reliance खरीदोगे? तो क्या देखोगे आप? What are those prices called in the market? हाँ, बोलो बोलो. What are those prices called? हाँ, strike price. So क्या है कि आप देखोगे कि what are the strike prices available? Okay, the strike price which is very near to the current price is called at the money price. Okay, fine. The prices which are more than the the current price, okay, will be called what? In the money, out of the money? Huh? Agar suppose the current price is 2,750 and the price strike price we have chosen 3,000. So out of the money. Huh? Out of the money. Out of the money. Fine, because your money will start, you will start making money only after 3,000. The share price jumps above 3,000. जब 3,000 से ऊपर जाएगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा ना. आपने 3,000 का स्ट्राइक प्राइस चुन लिया और स्ट्राइक प्राइस जो है 2750 है, which is almost near to the current price. So you will start making money only when the price goes beyond 3,000. I'm just revising it, okay? Because the options are such that people tend to forget. Even I forget. After so much of teaching, sometimes a person gets confused. So just to get ourselves back to on this thing. तो जो लेट आए हैं उनका क्या है अटेंडेंस? उनकी अटेंडेंस नहीं है. अच्छा ठीक है, फिर आज भी छुट्टी इसका, आज भी छोड़ दिया. ये फाउंडर डे की लग रही है, फाउंडर डे की कार्य से वो कह रही है, कभी ऐसा लग रहा है तो घर से सो के आ रही है. ओके, सो कमिंग बैक टू द द एग्जाम्पल है कि आपने रिलायंस, आप सोचते हो कि रिलायंस का प्राइस बढ़ेगा. ओके, यू थिंक रिलायंस इज गोइंग टू गो अप. सो यू हैव टू ऑप्शंस. आइदर गो एंड बाई रिलायंस इन द कैश मार्केट. कैश मार्केट में जाके खरीद लो रिलायंस. आप 100 खरीदोगे और 2750 रुपए का, तो दैट मीन्स यू शुड हैव हाउ मच मनी? 2,75,000 रुपीज यू शुड हैव इन द कैश इन योर बैंक अकाउंट. देन ओनली यू कैन बाय 100 रिलायंस, इजंट इट? और सपोज अगर 10% बढ़ा तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? एट द 25,000, 27,000 इन अ मंथ्स टाइम. सपोज it goes up by 10%. Of course, it can't go up by 10% in a month. Suppose it goes up. Okay. So how much money you are making? 27,000. Isn't it? अगर आज 27,000 रुपये का प्राइस है और आपने कैश मार्केट में जाके रिलायंस खरीदा, आपने 2,70,000 रुपये दिए और फिर एक महीने के बाद वो 3,000 का हो गया, तो आपका ज़्यादा 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा. Isn't? So how much is your return? 10%. 10% रिटर्न आई ना आपको. लेकिन आपका दूसरा तरीका है. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कैश मार्केट, यू कैन गो टू द ऑप्शंस मार्केट और द फ्यूचर्स मार्केट. अब वहाँ आपको क्या है, आपको प्रीमियम देना पड़ता है सिर्फ, या फ्यूचर मार्केट में आपको जो है मार्जिन देना पड़ता है. ओके, तो अब आपने क्या करा, आपने सोचा रिलायंस बढ़ेगा, आप ऑप्शन मार्केट में चले गए. ओके, सो यू बॉट रिलायंस इन द ऑप्शंस मार्केट. सो व्हाट यू विल गोइंग टू बाय अ कॉल ऑप्शन. ओके, you are going to buy a call option, or alternatively you can sell a put option also. It's the same thing, because a call buyer is bullish and a put seller is also bullish. So let's talk about a call buyer. Call buyer सोचता है कि शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो he goes and buy Reliance at 2,700 strike price and he pays a premium. Suppose he pays a premium of $50, okay, for buying 100 shares of Reliance, and the share price goes to say 3,000. ओके, अब उसने कितना दिया था? 50 रुपये का प्रीमियम दिया था, isn't it? 50 rupees premium multiplied by 100. So how much money he paid? How much money he paid? 5,000 only he has paid, and the share price has jumped to 3,000. So how much money is making? 300 multiplied by 30,000 again. अगर सपोज एक्सपायरी पे जाके क्लोज होती है उसकी पोजीशन, तो फर्ज करो तो ही इज मेकिंग $300, 30,000. और how much money? Only on 5,000. Whereas in the cash market you had purchased it for 2,70,000 to earn the same profit, but in the options market you just paid the premium and earned a same this thing. Looks to be quite unrealistic, but that is where the options market are set. Is that okay? आपको कम पैसा लगता है और आप उतना ही प्रॉफिट कमाते हो, लेकिन आपका रिटर्न बढ़ जाती है बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट इज लेस इन द ऑप्शंस मार्केट. ओके, फाइन. So let's start. So that means the premiums, you have to pay a premium when you enter into the trade. You have to pay a premium.
सो प्रीमियम कौन कौन पे करता है? हु आर द पीपल हु पे द प्रीमियम? हाँ, नहीं, ऑप्शन मार्केट में कौन प्रीमियम करता है रिया? कॉल बायर एंड पुट बायर. So call buyer and put buyer will be pay the premium, and call writer and put writer is going to receive the premium. Now the premium can change over the time because in India we have European options. Okay, India में क्या है? European options है, और बाकी countries में क्या है? American options है. Only India is one of the country which is having European options, and all other places we have American options. So difference क्या होता है? Call option में you can exercise. Please listen very carefully because it's going to be part of your quiz. Okay? इसलिए मैं कह रहा हूँ. Though I am recording it. Okay? Fine. So what I am talking about, that you have to pay a premium. Okay? Now the premium when you pay can go now in India. Sorry, हम बात जो कर रहा था कि इंडिया में यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं. ओके? और बाकी कंट्रीज में कौन से होते हैं? बाकी कंट्री में अमेरिकन होते हैं. इंडिया में कौन से होते हैं? यूरोपियन. यूरोपियन और अमेरिकन का डिफरेंस ये है कि अमेरिकन ऑप्शन कभी भी आप जाके उसको वो कर सकते हो. आई मीन यू कैन एक्सरसाइज योर ऑप्शन एनी डे. आपने आज खरीदा, कल ही आप अपनी एक्सरसाइज कर लोगे. फाइन, दे मूव लाइक फ्यूचर्स. बट इन केस ऑफ यूरोपियन ऑप्शन यू कांट एक्सरसाइज इट. यू कैन ओनली एक्सरसाइज एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी. लास्ट थर्सडे को ही अपनी कॉल को आप वो कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते. तो फिर पैसा कैसे कमाओगे? फिर तो आपको 1 महीने तक वेट करना पड़ेगा. हो सकता है कि रिलायंस बढ़ा, फिर घट गया, एंड में जाके गिरा हुआ था, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ था बीच में कभी भी वो आप एनकैश नहीं कर सकते. सपोज आपने 2700 का रिलायंस खरीदा, वो 3000 का हो गया. आपने अक्टूबर में खरीदा, 1 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर को दिवाली के टाइम पे वो 3000 का टच कर गया. लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि यूरोपियन ऑप्शन है. और आप लास्ट थर्सडे जब तक पहुँचते 27 अक्टूबर को वापस 2700 रुपये का आ गया. तो जो आपने प्रॉफिट कमाया है तो वो खत्म हो गया. तो ऐसा कैसे करेंगे कि हम जो है हम प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे यूरोपियन ऑप्शन में? समझ में आ रही है आपको बात? अब क्या है कि इसके लिए करने के लिए क्या है कि आपने पहले कॉल खरीदी थी, तो अब आपको आपको क्या करना पड़ेगा? उसी स्ट्राइक पे कॉल राइट करनी पड़ेगी. पहले आपने क्या करा था? प्रीमियम दिया था, और अब आपको प्रीमियम मिलेगा. और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो तो या तो आपका प्रॉफिट होगा या आपका लॉस होगा. देखो, पहले आपने कॉल बाई करी तो आपने प्रीमियम दिया 5000 रुपये सपोज, और जब आपने कॉल राइट करी उसी स्ट्राइक प्राइस पे, तो प्रीमियम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. अगर प्रीमियम बढ़ गया सपोज, तो आपका फायदा हो जाएगा. आपने 5000 का पे रिलायंस खरीदा था, और अब हो गया 10,000 पे आपने राइट करा, तो आपको 10,000 प्रीमियम मिल गया. तो दोनों का डिफरेंस क्या? आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा. तो हाउ डू वी एग्जिट अ कॉल ऑप्शन और अ पुट ऑप्शन और एनी अदर थिंग? रादर यू आर अ कॉल बायर और अ पुट बायर, यू कैन एग्जिट द ऑप्शन. What you can do is that you can, if you have bought it, you have to sell it at the same strike price. जिस प्राइस पे आपने खरीदा था उसी प्राइस पे आपको बेचना है. ओके, फाइन. ओके, कीर्ति को डोंट राइट. अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आपको वो कर लेना. आप एग्जाम के लिए वो आपको समझ आ जाएगा उससे. तो आप सिर्फ सुन में ध्यान दो और मेरे वीडियो को सुन लेना एक बार. ठीक है? आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पर्पज से. तो फिर आपने भूल भी जाता है इसमें. मैं भी खुद भूल जाता हूँ. ओके, सो अब आपने क्या करा? अगर आप यूरोपियन ऑप्शन लेते हो तो आप अपनी कॉल एक्सरसाइज नहीं कर सकते. ओके, ड्यूरिंग द मंथ. जो आपको महीने के अक्टूबर में आपने खरीदा था, तो अक्टूबर में किसी दिन भी आप नहीं कर सकते. सिर्फ लास्ट थर्सडे को ही आप अपनी कॉल एक्सरसाइज कर सकते हो, और उस दिन क्या होगा कुछ पता नहीं. तो इससे अच्छा बेटर है कि अगर आप कभी प्रॉफिट में आ जाते हो तो आप पहले ही प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ. ओके, फाइन. तो आपने अगर सपोज 3000 के स्ट्राइक प्राइस पे, 2700 के स्ट्राइक प्राइस पे रिलायंस खरीदा था, और उस टाइम रिलायंस सपोज 27 के आसपास है जैसे आ जाए. अब रिलायंस जैसे ही बढ़ेगा तो उसका प्रीमियम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा उसी स्ट्राइक प्राइस का. 2700 की स्ट्राइक प्राइस में जिसमें आपने खरीदा था 5000 पे प्रीमियम दिया था, वो अगर सपोज वो 3000 पहुंच गया रिलायंस, तो हो सकता है कि वो प्रीमियम डबल हो जाए. ओके, लेकिन अगर रिलायंस गिरेगा तो प्रीमियम गिर जाएगा. तो आपने जब अगर रिलायंस बढ़ा और प्रीमियम बढ़ गया, और आपने क्या करा, आप पहले बाई करा था, आप सेल कर दिया, तो अब आपको प्रीमियम मिल जाएगा. यू बिकम आई मीन कॉल राइटर एट अ हायर प्राइस, बट एट द सेम स्ट्राइक प्राइस, बट विद अ हायर प्रीमियम, यू कलेक्ट अ मोर प्रीमियम देन व्हाट यू हैव पेड, एंड डिफरेंस बिकम्स योर प्रॉफिट. ओके, इज दैट क्लियर?
ये क्लियर है या नहीं है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, बट आइडिया ये कराने का ये नहीं था। आइडिया था कि ये जो प्रीमियम बढ़ता है घटता है ये कैसे होता है वो। ओके, तो विल डू दैट। तो एक सेकंड पहले मैं आपको यही करा देता हूं जो मैंने एग्जाम्पल दे रहा था ना, तो इससे आपको, नहीं तो मैं आपको बीच में नहीं छोड़ना चाहता। अब ये क्वेश्चन देखो जो मैंने कराया, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड शेयर इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 2500। मिस्टर श्याम एक्सपेक्ट्स द शेयर प्राइस टू गो अप। श्याम को लगता है कि ये शेयर प्राइस 2500 का ये बढ़ेगा। ओके फाइन। ही बाइज 10 ATM कॉल विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 2500। देखो शेयर प्राइस भी 2500 है, उसने 2500 का स्ट्राइक प्राइस चुन लिया जो ATM है। ओके, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100, 100 रुपए के प्रीमियम पे। और जो 2800 की कॉल थी वो 30 रुपए पे ट्रेड कर रही थी। ओके, अच्छा ये ब्रैकेट में लिया हुआ इंफॉर्मेशन सिर्फ आपके समझाने के लिए। तो ये क्या है कि ये जो आपने खरीदा कितने का है? 2500 का खरीदा है ना। जब 2500 का खरीदा है तो अगर आप 2800 के खरीदते सपोज स्ट्राइक प्राइस की, तो उसका प्रीमियम कम होता। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट 2800 से शुरू होता। यहां आपने क्या करा, आपने 2800 से नहीं चुना, 2500 चुन लिया, और उसका प्रीमियम ज्यादा है, आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये आउट ऑफ द मनी कॉल लेते तो आपका प्रीमियम तो कम हो जाता, लेकिन आपका प्रॉफिट जब तक शेयर प्राइस 2800 से ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप प्रॉफिट होगा ही नहीं आपका। हैव यू गॉट इट? ये जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी हुई है ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है कि आपका दो, सपोज आपका कई सारे विकल्प है, ये दो विकल्प दिए हैं, एक तो एट द मनी ले लो या फिर 2800 का ले लो। 2800 पे प्रीमियम कितना है? 30 है, और 2500 पे प्रीमियम कितना है? 100 है। तो उसको तो 100 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन वो कह रहा है मैं 100 रुपये ज़्यादा दे दूंगा, अगर 30 भी दे सकता हूँ लेकिन 100 दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? क्यों दे दूंगा? 2800 के बाद हाँ, उसका प्रॉफिट जो होगा, अगर रिलायंस 2700 पे क्लोज हो गया तो उसका 30 रुपये गया, जबकि 2500 है अभी और 2700 तक भी पहुंच जाएगा, उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जब तक वो 2830 से ऊपर नहीं जाएगा उसको कुछ नहीं होने वाला। यहां पर उसको 2500 है और 2600 के बाद उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। जब शेयर प्राइस 2600 होगा वो ब्रेक इवन हो रहा है, इससे ऊपर जाएगा तो उसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। इज दैट ओके? तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये भी ऑप्शन था उसके पास, उसने इग्नोर कर दिया ऑप्शन। ओके, द शेयर प्राइस आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद शेयर प्राइस गोज अप टू 2700। अभी कितना था? 250 पे लिया था आपने, 2700 हो गया। ये अंडरलाइंग प्राइस है, वो स्ट्राइक प्राइस है। ओके, लेकिन अंडरलाइंग प्राइस और इवन द कैश प्राइस एट दैट टाइम वाज द सेम, क्योंकि दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ATM। द शेयर प्राइस आफ्टर फ्यू डेज गोज अप टू 2700। द ऑप्शन प्रीमियम ऑन 2500 स्ट्राइक प्राइस नाउ इज सेलिंग एट ₹200। अब क्या हो गया कि उसी शेयर का, क्योंकि वो शेयर प्राइस बढ़ गया तो उसका प्रीमियम बढ़ गया उसी स्ट्राइक प्राइस का। यही स्ट्राइक प्राइस 2500 का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जो है वो 200 रुपये हो गया। तो दैट मीन्स ही इज सिटिंग ऑन अ गेन ऑफ 100 रुपीज पर शेयर। उसको 100 रुपये का फायदा हो रहा है। उसने 100 पहले कितना दिया था? 100 दिया था, अब प्रीमियम कितना हो गया? 200। अगर वो बेचता है, उसी स्ट्राइक में बेच देता है किसी को, तो उसको 100 दोनों, अब उसको 200 रुपये मिलेगा। पहले 100 था, 100 इंटू 1 लाख रुपया उसने दिया। क्यों दिया 1 लाख रुपया? बिकॉज उसने कितने हैं? 10 ATM। ओके, तो 10 ATM लिए थे और प्रीमियम ऑफ 100, फाइन। तो 100 शेयर्स का है, तो इसका मतलब उसने पहले 1 लाख रुपए दिया था प्रीमियम। अब उसको कितना मिलेगा? 2 लाख प्रीमियम। उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1 लाख। इज दैट क्लियर? तो अब क्या हुआ, तो ये चल, और ये अच्छा, अब क्या हुआ कि वही 2800 की कॉल, वही 2800 की कॉल जो है अभी पहुंच गई 100 रुपए में। जो पहले 30 रुपए में थी अभी वो 100 रुपए में है। बट इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे इस सम को सॉल्व करने के लिए। वो इसका सेकंड पार्ट है, इसलिए मैंने डाली हुई फिगर, बट हम सेकंड पार्ट में नहीं जाएंगे, वो बाद में जाएंगे। तो ये जो है अभी हम उसका कोई यूज नहीं है ब्रैकेट वाली इंफॉर्मेशन का। ओके, ये समझ आ गई दैट ही कैन बुक हिज प्रॉफिट। ही चूजेस टू एग्जिट हिज पोजीशन, एक्सप्लेन हाउ ही कैन डू सो एंड व्हाट विल बी हिज गेन एंड लॉस एंड व्हाट विल बी हिज रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू द कैश मार्केट। तो हम C वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, हम सिर्फ A और B। पहला कि अगर वो कैश मार्केट में खरीदता तो क्या होता, और अगर ऑप्शन मार्केट में खरीदता तो क्या होता, कितनी उसको रिटर्न मिलती। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ओके,
he will exit the buy call option by selling a call option at the same strike price within the same expiration period. तो ये तरीका होता है बाहर निकलने का. ओके तरीका क्या है कि आपको वही स्ट्राइक प्राइस चुनना है, वही एक्सपायरेशन पीरियड चुनना है, क्योंकि हमेशा आपको 3 महीने की विंडोज मिलती हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर अभी चल रही है. अक्टूबर खत्म होगा तो फिर नवंबर दिसंबर जनवरी हो जाएगा. अगर आपने अक्टूबर में खरीदा था तो अक्टूबर में बेचना पड़ेगा, अगर आपने नवंबर में बेचा था तो नवंबर में खरीदना पड़ेगा, या नवंबर में खरीदा था तो नवंबर में बेचना पड़ेगा. आप महीना चेंज नहीं कर सकते. अगर करोगे तो आपको फायदा नुकसान नहीं होने वाला. ओके देन यू कांट बुक द प्रॉफिट. सो ही विल एग्जिट द बाई कॉल ऑप्शन बाय सेलिंग द कॉल ऑप्शन एट द सेम स्ट्राइक प्राइस. और आपको वही स्ट्राइक प्राइस चुनना पड़ेगा जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने पहले खरीदा था. इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, इन केस ऑफ पुट ऑप्शन द सेम स्ट्राइक प्राइस इज सोल्ड. ओके तो उसी स्ट्राइक प्राइस और विद इन द सेम एक्सपायर. ये ध्यान रखिए कि उसी एक्सपायरेशन प्राइस पीरियड पे और वही स्ट्राइक प्राइस आप चुनोगे. पहले आपने बाई करा था, अब सेल करोगे. अगर पहले सेल करा था बाई करोगे, आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा एंड यू विल मेक आइदर अ प्रॉफिट और अ लॉस. ओके तो अब क्या हो रहा है, ही बॉट 10 लॉट्स ऑफ 2500 कॉल एट 100 रुपीज प्रीमियम. ओके now what is going to he will sell 10 lots of 2500 call at 200. पहले उसने खरीदा, पहले उसने क्या करा था, बाई करा था, अब वो सेल करेगा. फाइन. His investment on long call, that means he is buying call. जब बाई करते हैं उसको लॉन्ग कॉल बोलते हैं. ऑप्शन प्रीमियम ही हैज पेड व्हाट 1 लाख. अभी ही सेल्स सो ही गेट्स 2 लाख एंड प्रॉफिट इज 1 लाख. तो उसका 1 लाख लगा था, 1 लाख प्रॉफिट कमा लिया उसने. तो व्हाट इज द रिटर्न 100%. तो उसका आरओआई कितना 100% है. ओके फाइन. ये क्वेश्चन आपके उसमें स्लाइड में है और मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं. ओके इज दैट ओके. इसको ध्यान से कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता जुलता आएगा शायद. ओके नाउ इफ ही हैड बॉट 100 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, तो वो 25, अगर वो कैश मार्केट में खरीदता तो 2500 के शेयर खरीदता, 2500 का चल रहा था प्राइस, और 100 शेयर खरीदता तो यानी 25 लाख रुपए लग जाता उसका. ओके एंड एट 2700 ही वुड हैव गेन 2 लाख. अगर बेच देता 2700 में, अब जब 2700 का हो गया अंडरलाइंग प्राइस, तो 200 रुपए का गेन हो रहा है. तो उसका कितना गेन हो रहा है, 8% गेन हो रहा है. अगर वो कैश मार्केट में होता तो उसको 8% का गेन होता, वहां उसको 100% का गेन हो रहा है. उसका 1 लाख लगा था, अब 2 लाख बन गया. यहां उसका कितना लगा था, 25 तक लगा, और उसका जो है 2 लाख ही बना. पैसे उतने ही बने, लेकिन सिर्फ उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसको 25 लाख लगाना पड़ा 2 लाख कमाने के लिए. और इसमें ऑप्शन मार्केट में उसको 1 लाख लगाना पड़ा 1 लाख कमाने के लिए. तो 1 लाख कमाने के लिए 25 लाख लगा, और वहाँ जो है क्या कहते हैं, आपका 1 लाख रुपए प्रीमियम दिया था उसने. सो इन द ऑप्शन मार्केट यू गेन बिकॉज ऑफ द लेवरेज इफेक्ट. तो आपको लेवरेज इफेक्ट की वजह से, क्योंकि आपका कम पैसा लगा था और आपको ज़्यादा रिटर्न मिली, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड लेवरेज. यू गेट अ राइट टू बाई रिलायंस बाई पेइंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट और एनी कंपनी, and you gain out of the leverage. Now leverage impact can either magnify your gains or magnify your losses also. अगर यहाँ तो हमने प्रॉफिट देखा था, अगर उल्टा हो जाता तो आपका लॉस भी मैग्नीफाई हो जाता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एक्चुअली द लॉस विच मैग्नीफाइज एंड नॉट द प्रॉफिट. अनफॉर्चुनेटली दैट इज व्हाट आवर मार्केट्स आर लाइक दैट. आपको ये जो फायदा हुआ है तो खुशी हो रही है देख के, बट अधिकतर 9 out of 10 टाइम्स यू आर गोइंग टू मेक अ लॉस. ओके अनलेस यू आर, आप थोड़ा अच्छा और एक्सपर्ट हो जाओगे तो हो सकता है कि 7 दफा लॉस करवाओगे. ये नहीं है कि आप प्रॉफिट कमाते रहोगे हमेशा ही, ऐसा नहीं है. इज दैट ओके. अब ये अदर ऑल्टरनेटिव है, बाद में कराऊंगा जब हम आगे कुछ स्ट्रैटेजी कर लेंगे. अब जल्दी से जो है हम ये कर लेते हैं, क्योंकि ये लोगों का जो है हमारी क्लास 11 बजे तक है ना, तो मैं 10:30 बजे इस घड़ी के हिसाब से छोड़ दूंगा. तो जिन लोगों ने ब्रेक पे जाना है, बाकी आपके जो है जिनका वो है प्रेजेंटेशन दे कैन गिव. ओके सो वी हैव 20 minutes टू गो, सो वी हैव टू कवर इन 20 minutes. सो दीज आर कॉल्ड ग्रीक्स. काशवी कैन यू रीड. एक सेकंड रुक जाओ, अब बोलो. The option premium is determined by the 3 factors mentioned earlier: intrinsic value, time value, and volatility. But there are more sophisticated tools used to measure the potential variations of options premiums. They are as follows: delta, gamma, vega, rho, and theta. So they are actually, अब ऊपर छोड़ देते हैं
हम ये देखते हैं कि देर आर these are the four things which affect the option premium. They are going to influence the option premium. डेल्टा, गामा, वेगा, रोहो एंड थीटा, ये तीन जो है इनके नाम दिए गए. ओके, इनको एक्सप्लेन करते हैं. पहले है डेल्टा. पहले देखते हैं डेल्टा. देखो क्या होता है कि प्रीमियम बढ़ता है जैसे जैसे अंडरलाइंग प्राइस बढ़ता शुरू हो जाएगा, आपने खरीदा तो प्रीमियम बढ़ना शुरू होगा. बट द प्रीमियम इज नॉट गोइंग टू राइज एज द शेयर इज राइजिंग. तो क्या लिखा है, बढ़िए जरा. हाँ चलो पढ़ो. Delta is the measure of an option's sensitivity to changes in the price of the underlying asset. Therefore, it is the degree to which an option price will move given a change in the underlying stock or index price, all else being equal. Delta is equal to change in option premium divided by change in underlying price. For example, an option with a delta of 0.5 will move 5 for every change of rupees 10 in the underlying stock or index. हाँ देखो क्या होता है कि अब क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेड में हैं तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा और प्रीमियम से आप पैसा कमाओगे. शेयर प्राइस की मूवमेंट से आप पैसा नहीं कमाओगे. इट इज बिकॉज ऑफ द प्रीमियम विल गो अप. अब जो प्रीमियम और शेयर प्राइस होता है वो दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है. फाइन, अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपको बड़ी खुशी होगी, जितना शेयर प्राइस बढ़ा उतना प्रीमियम बढ़ जाएगा तो आप सेम काइंड ऑफ प्रॉफिट कमाओगे. बट ऐसा नहीं होता क्योंकि आपने एट द मनी खरीदा था. हर इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, सबका प्रीमियम मूवमेंट अलग अलग होता है. ओके तो हम ये देखते हैं कि चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम अपॉन चेंज इन अंडरलाइंग, दैट इज कॉल्ड द डेल्टा. यानी चेंज कितना हुआ, आपका शेयर प्राइस बढ़ा कुछ रुपए और प्रीमियम बढ़ा कुछ, तो कितना परसेंटेज बढ़ रहा है. ओके दैट इज कॉल्ड द डेल्टा. तो आपको वो शेयर खरीदना चाहिए जिसका सबसे डेल्टा 1 है. अगर डेल्टा 1 होगा तो उतना ही शेयर प्राइस बढ़ा उतना ही प्रीमियम बढ़ेगा. फाइन, तो फिर आपको पूरा प्रॉफिट हो जाएगा. जितना शेयर प्राइस बढ़ा उतना ही आपको मिल जाएगा. बट अगर आपने डेल्टा यहाँ पर जो होता है डेल्टा 0.5 होता है एट द मनी का, तो आपको सिर्फ 50% ही ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा कंपेयर टू द शेयर प्राइस. तो लेट्स सी दैट. जैसे हमने देखा कि डेल्टा अगर 0.5 है तो फॉर एवरी 5 रुपीज चेंज इन 10 रुपीज द अंडरलाइंग स्टॉक. सो यानी प्रीमियम 5 रुपये बढ़ेगा अगर अंडरलाइंग 10 रुपये बढ़ता है. अगर शेयर प्राइस 10 रुपये बढ़ा तो प्रीमियम 5 बढ़ेगा अगर डेल्टा 0.5 है. ओके सो लेट्स लुक एट हेयर. फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट दिस टेबल. ओके यहां पर क्या है, ये किसी कंपनी का है, टाटा स्टील. उस जब पुराने जमाने की बात है, 300 रुपये का स्ट्राइक प्राइस हमने लिया. अब तो टाटा स्टील का प्राइस बढ़ गया है तो 300 रुपये का हमने स्ट्राइक प्राइस लिया. तो अब हमने देखा कि अगर ये प्राइस जो है ये ऐसे चलता है, 280 का है, 285 का है, तो आपने अगर 300 रुपये का मैं खरीदा था तो आपने प्रीमियम कितना दिया होगा, 13.69. इतना प्रीमियम दिया था. जब आपने 300 रुपये का स्ट्राइक प्राइस था तो आपने एट द मनी 300 रुपये का लिया तो आपको 13 रुपये 70 पैसे प्रीमियम दिया था. अगर ये शेयर प्राइस 305 हो जाता तो प्रीमियम बढ़ जाता. इन दोनों का डिफरेंस आपको प्रॉफिट मिल रहा है. अगर शेयर प्राइस 320 पे क्लोज होगा तो यानी 25 माइनस ये 13, ये आपको प्रॉफिट हो रहा है. तो अब क्या हो रहा है, ये यहां दिया गया है डिफरेंस, ये डेल्टा है, यानी शेयर प्राइस चेंज डिवाइडेड बाई द चेंज इन प्राइस. तो आप देखोगे कि जो डीप जब इन द मनी हो जाएगा, जितना इन द मनी चलता जाएगा उतना आपका डेल्टा बढ़ता जाएगा, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा. द रेशियो ऑफ मेकिंग मनी विल बी गेटिंग मोर एंड मोर एज द शेयर प्राइस मूव्स डीप इन द मनी. इज दैट ओके? फाइन. तो यहां पर जो है इसका रेट बढ़ता जा रहा है. ओके फाइन. सो ऐसे ही चलो इसको हम छोड़ देते हैं. ओके डेल्टा के यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट है. ओके जस्ट रीड, काशी वहीं से पढ़ो, कोई बात नहीं. Okay, so just read this, all of you, and can you understand what it is written? कोई आपकी query है यहाँ पर? Just read. Whatever you are not followed, I am going to answer your question rather than going to tell you what it is. इज इट क्लियर? क्लियर? वहां पर अंगद
क्लियर है काशवी? अर्पित कोई क्वेश्चन है? देखो एक बार पढ़ो, आप भी पढ़ो। कीर्ति, इज इट क्लियर? ये वही है जो मैंने बताया है कि अगर जब से शेयर प्राइस अंडरलाइन बढ़ता है तो प्रीमियम बढ़ जाता है, और डेल्टा 0.5 है तो सिर्फ जितना बढ़ा है उसका 50% ही बढ़ेगा प्रीमियम। तो क्योंकि शेयर प्राइस जो है वो 19 से 20 हुआ और पहले प्रीमियम 80 पैसे था और 50 पैसे और बढ़ गया तो 1 रुपी 30 पैसा हो गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। इज दैट ओके? इज इट क्लियर? ये पढ़ो, जस्ट रीड, सॉरी, अगर जितनी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन होती जाएगी उतना जो है प्रीमियम चेंज कम होगा। ओके, और अगर इन द मनी कॉल ऑप्शन है तो देखो अब जो चेंज हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है तो डिग्री ऑफ जो पैसा बना रहे हो आप वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है बस। ओके फाइन। तो इसका मैंने क्या करा अभी आपसे मैं शेयर कर दूंगा। एक मैंने आपको दिखाया है डेल्टा, ये कॉल, हाँ, अब इसी को मैंने एक्सेल में ले लिया जस्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आप देखोगे कि ये जो है डेल्टा जो है ऐसा आ रहा है जो आपकी स्लाइड में दिया गया। ये तो किसी बुक से कॉपीड है। अब मैंने क्या करा कि शेयर प्राइस कितना बढ़ा 5 और प्रीमियम कितना बढ़ा इतना, तो कितना बढ़ा 0.34। एग्जैक्ट मैच नहीं करा, वो बुकिश है ये तो एक्सेल से कैलकुलेट करा हुआ, तो लगभग सेम आ रहा है। जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ता है आपका जो है डेल्टा, फ्रेश डेल्टा कैलकुलेट हो जाता है। इज दैट ओके? द फर्स्ट दिस कॉलम इज द शेयर प्राइस चेंज। ये 5 रुपए बढ़ रहा है यहाँ पर। ओके, शेयर प्राइस 5 रुपए बढ़ रहा है, लेकिन प्रीमियम जो है वो 1.57 से 83 2 इतना देखो प्रीमियम बढ़ता जा रहा है। द ऑप्शन प्रीमियम इज राइजिंग एट अ मच हायर रेट एंड द शेयर प्राइस इज ओनली 5 रुपीज। जो चेंज इन शेयर प्राइस है वो 5 रुपए है और प्रीमियम जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, और इसका मतलब डेल्टा जो है वो रिवाइज होता जा रहा है। इज दैट ओके? डेल्टा इज गोइंग अप। फाइन। तो अब क्या होता है, एक दूसरा होता है गामा। अभी देखेंगे गामा जो है किस स्पीड से डेल्टा बढ़ रहा है, किस स्पीड से डेल्टा बढ़ रहा है। यानी कि ये जो है बड़ा कितना, इन दोनों का डिफरेंस 26, इन दोनों का डिफरेंस 28 और 5 रुपए। तो ये स्पीड भी जो है उसकी स्पीड स्लो होती जा रही है। हाँ, तो वो नहीं, उसकी मैं पूछ नहीं रहा। आप देख, ये देखो, हम इसको देखते हैं एक सेकेंड। अगर मैं यहाँ 26 रुपये में लगाऊं और इसका जो है फॉर्मूला में जाऊं तो ये आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आया हुआ है और ये डिफरेंस तो 5 रुपये ही है। तो 5 रुपये बढ़ा, और जो एट द रेट एट विच द गामा इज इंक्रीजिंग, एट द रेट एट विच द डेल्टा इज इंक्रीजिंग इज कॉल्ड द गामा। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। गामा, एक बार गामा देखते हैं। जस्ट रीड इट इन योर माइंड। ओके, जस्ट डोंट रीड इट आउटली। ओके, एक बार पढ़ो। I'll just explain. This is the rate at which the delta value of an option increases or decreases as a result of move in the price of the underlying instrument. So change in the option delta divided by change in the underlying price. ठीक है? जैसे गाड़ी चलती है तो तेज स्पीड करते जाओगे तो स्पीड और बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो that is how you accelerate the car. Okay, and then you will reach the destination much faster. So that is a change in speed of the car. Okay. How is delta derived? How is the delta derived? Change in premium upon change in underlying price. हाँ, वो दैट इज अ फॉर्मूला बेसिकली, दैट इज अ फॉर्मूला। तो ये कह रहा है कि निकलता कैसे। अभी चलो कोई बात नहीं, इसको भी करते हैं। अभी भी देखेंगे गूगल में, देखें हाउ द डेल्टा इज derived. You just check in the Google and try to let's just go and read. Okay, that's a good question. Okay, कि डेल्टा ऐसा क्यों बिहेव करता है। ओके फाइन, तो ये गामा हो गया। अच्छा, अब मैं सिर्फ एक चीज और कराऊंगा, देन वी विल गो फॉर द प्रेजेंटेशन। अब इसका यूज क्या है,
अब इससे पहले हम देखते हैं कि डेल्टा जो है, जो हमने देख लिया कॉल ऑप्शन का डेल्टा देख लिया, एक बार पुट ऑप्शन का डेल्टा भी देखते हैं। ओके, अब पुट ऑप्शन के डेल्टा में क्या होता है, पुट ऑप्शन के डेल्टा जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि यहां पर क्या है कि जब आपने स्ट्राइक प्राइस खरीदी 300 रुपए में, आपने बेच दिया किसी को। पुट ऑप्शन क्या है, दैट मीन्स यू आर सेलिंग टाटा स्टील एट 300 टू समवन, यू आर बेरिश ऑन द शेयर, आपको लगता है शेयर प्राइस गिरेगा, आपने पुट ऑप्शन बेच दिया। ओके, कितने का, 300 का। तो आपने जब 300 का बेचा तो आपने प्रीमियम कितना दिया, 15 रुपए। अब सपोज द शेयर प्राइस गोज टू 295, ये दिस इज योर इन योर फेवर, शेयर प्राइस जितना नीचे गिरेगा आप पैसा कमाओगे। तो यहां पर क्या होगा, तो प्रीमियम बढ़ गया। ओके, तो जैसे आपने बेचा 300 रुपए का और प्राइस 295 हो गया, तो डिफरेंस कितना हुआ, 5 रुपए का। ओके, बट आपको इसका डिफरेंस मिल रहा है, आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो दिस माइनस दिस हो रहा है। तो जितना कम होता चला जाएगा, ये इन द मनी जाता जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अगर सपोज 280 पे क्लोज होता है और आपने 300 पे बेचा था, तो आपका डिफरेंस जो होगा 27 माइनस 15 प्रॉफिट होगा आपका। इज दैट ओके, फाइन। और जितना आउट द मनी होगा तो आपका जो है प्रीमियम कम होगा। ओके, इट विल एंड द डेल्टा विल ऑल्सो फॉल, और डेल्टा माइनस होगा क्योंकि इसमें शेयर प्राइस गिर रहा है और आपका प्रीमियम बढ़ रहा है, तो इट इज हैविंग अ नेगेटिव डेल्टा। ओके, तो मैं आपको इट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ एंड द शेयर ऑप्शन प्रीमियम। तो हम इसी को देखते हैं एक बार, और फिर इसका यूज है एक बस कि हम ये क्यों कर रहे हैं, आफ्टर ऑल जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है। ओके, इसका पता होना चाहिए ना, तो वील गो इनटू दैट। तो हम देखते हैं, ये आया आपका प्राइस, तो मैंने ठीक उसी प्रकार देखा कि प्राइस 5 रुपए गिरता जा रहा है लेकिन प्रीमियम बढ़ता चला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये डेल्टा जो निकालेंगे वो माइनस में आएगा। तो पुट डेल्टाज आर ऑलवेज नेगेटिव। जब डेल्टा के आगे नेगेटिव लगाओ तो दैट मीन्स आई एम बेरिश, आई एम इंटरेस्टेड टू बाय अ पुट और बाय राइट अ कॉल। ओके, दोनों केस में मैं बेरिश हूं। तो यहां पर जो है आपका पुट डेल्टाज आर ऑलवेज नेगेटिव। इज दैट ओके? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, एक समथिंग कॉल्ड हेज रेशियो। ओके, सो वील डू दैट, बस देन वील एंड 5 मिनट। यूजेस, कहाँ यूज होता है डेल्टा और गामा, ये सब चीजें जो हैं, ये आप पढ़िए काशवी एक बार। The knowledge of delta is of vital importance for option traders because this parameter is heavily used in margining and risk management strategies. The delta is often called the hedge ratio. Example, if you have a portfolio of n shares of a stock, then n divided by the delta gives you the number of calls you would need to be short, that is need to write, to create a riskless hedge, that is a portfolio which would be worth the same whether the stock price rose by a very small amount or fell by a very small amount. ओके, तो इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ। फाइन, तो मैंने भी पढ़ा था 1 साल के बाद, तो मैं भी गोल हो गया कि है क्या ये, बट एंड लेट्स अंडरस्टैंड क्या है। ये सिंपल है। देखो, सबसे पहले मैंने जब हमने शुरू करा था तो मैंने बोला था कि अगर आपको हेज करना है, आपके पास सपोज शेयर्स हैं, सपोज मान लो रिलायंस के शेयर हैं, मैं हमेशा एग्जांपल रिलायंस का लेता हूँ, आपके पास रिलायंस के शेयर हैं, अभी कितने का है, 2750 का है, और आपने 100 शेयर खरीद लिए 2750 के, तो आपका कितना पैसा लगा हुआ, 2,75,000। फाइन, आपको लगता है और गिरेगा, बट आप तो खरीद चुके हो, तो आपको तो लॉस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म के पर्पज से लिया, आप सोचोगे मैं इसको रखूंगा 5 साल, बढ़ेगा। अब शेयर प्राइस तो नीचे जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, तो आपने खरीद के रख लिया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये गिरेगा ना, तो मैं फिर भी नुकसान नहीं लूंगा, किसी तरह प्रॉफिट कमा लूंगा मैं उस दौरान में, जब ये गिर जाएगा तभी मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो आई वॉन्ट टू हेज माई पोजिशन। अगर आपको लॉस होता है तो यू कैन हेज योर पोजिशन। कैसे? बाय गोइंग टू फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट। तो पहला विकल्प क्या है कि आप पुट खरीद लो। जब आप पुट खरीदते हो तो यू गेट अ राइट टू सेल रिलायंस एट 2700 और 750 व्हाट इज द करंट प्राइस। जिस प्राइस में आपने खरीदा था उस प्राइस पे आप बेच सकते हो रिलायंस, आपको ये ऑब्लिगेशन मिल जाता, आपको ये राइट मिल जाता है ना। जब आप कॉल पुट ऑप्शन खरीदते हो, दैट मीन्स यू गेट अ राइट टू सेल रिलायंस एट 2750, यू चूज दैट सेम स्ट्राइक प्राइस। आपने उतना ही स्ट्राइक प्राइस चुन लिया जितने पे खरीदा था आपने। ओके, तो अब जब रिलायंस गिरेगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप रिलायंस बेच सकते हो 2750 में, नॉट द
रिलायंस विच यू हैविंग इन कैश मार्क इन डीमैट अकाउंट, जो आपके डीमैट अकाउंट में उसको बेचने की जरूरत नहीं है, आपने तो सिर्फ अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही बेच डाला। ओके, अब रिलायंस सपोज 2500 का आ जाता है या 2550 का आ जाता है, तो आपको 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। ओके, वैसे कैश मार्केट में, लेकिन 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में, क्योंकि आपने किसी को 2750 का बेच दिया, अभी 2550 का हो, वो आपको 200 रुपए दे देगा। समझे बात? तो आपको 200 रुपए का जो लॉस हो रहा था कैश मार्केट में, दैट यू गेट ऑफसेट इन द फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट। अब दोबारा सुनो एक बार कि आपके पास रिलायंस है 2700 रुपए के, सपोज आपको सोचो आपने 2700 रुपए का एक शेयर खरीदा हुआ, आप चाहते हो कि इसमें मुझे कोई नुकसान ना हो, तो आपने 2700 में बेच दिया। कैसे? बाय बाइंग अ पुट। व्हेन यू बाय अ पुट, दैट मींस यू गेट अ राइट टू सेल रिलायंस एट 2700 टू समवन। ठीक है, ऑफ कोर्स उसमें प्रीमियम है, प्रीमियम को सोचना कि नेग्लिजिबल साइड पे छोड़ देते हैं। अब अगर सपोज वो रिलायंस गिरता है 2500 पे आ जाता है, 2500 पे आता है, तो आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ऑफ कोर्स जो प्रीमियम दिया है वो निकाल दो, उसमें सपोज आपने 5 रुपये, आपको 195 रुपीज़ का गेन हो जाएगा। फाइन, तो प्रीमियम था, दैट वाज योर हेजिंग कॉस्ट, अगर वो निकाल दिया जाए आपको 195 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है ऑन एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। मान लो कि आप अपना ऑप्शन आई मीन वो कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो टाइम ऑप्शन। तो दिस वे यू कैन हेज योर रिस्क। तो एक तो तरीका क्या है, आप पुट को बाई कर सकते हो। अगर आप पुट बाई कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली अ पर्सन हु इज बेरिश ऑन द स्टॉक, आपको लगता है शेयर प्राइस गिरेगा, तभी तो आप पुट बाई कर रहे हो। तो दूसरा उसका विकल्प क्या है, यू कैन राइट अ कॉल ऑल्सो। अगर आप कॉल राइट करते हो और पुट बायर हो तो आपका व्यू सेम है, यू आर बेरिश। अगर आप कॉल बाई करते हो और पुट राइट करते हो तो आप बुलिश हो, है ना। तो आपका दो विकल्प है कि या तो आप पुट बेच देते, बाई करते, या आप कॉल राइट करते। तो अब हम देखते हैं कॉल राइट करके कैसे काम होता है इस एग्जाम्पल में। ओके, बस एक एग्जाम्पल करके फिर छुट्टी। Okay, just have a look at the screen. The same question, the same thing which I put there. Okay. Now suppose that you have some shares. Suppose आपके पास एक शेयर है, 100 शेयर्स है, कैश मार्केट आपने खरीद लिया, कितने का? 600 रुपये में खरीदे आपने। यू बॉट शेयर्स एट 600 रुपीज़। सो और मान लो डेल्टा जो है एट द मनी का 0.5 होता है, वो तो स्टैंडर्ड है। ओके, तो अब आपको लगता है कि ये शेयर गिरेगा। ओके, तो आप ये शेयर बेचोगे नहीं, आपने कैश मार्केट में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदा हुआ, यू आर गोइंग टू नॉट गोइंग टू सेल, बट यू कांट अफोर्ड टू लूज ऑल्सो एट द सेम टाइम, यू डोंट लाइक टू लूज मनी ऑल्सो। तो आप क्या करोगे, आप 600 का स्ट्राइक प्राइस का वो ले लोगे, और इस पे जो प्रीमियम चल रहा है वो 30 रुपये का प्रीमियम है। ओके, व्हेन यू राइट अ कॉल, जब आप राइट करोगे कॉल तो आपको उस पर 30 रुपये मिल जाएंगे। इज दैट ओके? अब आपने जब 600 रुपये का स्ट्राइक प्राइस सुना और कॉल राइट करी तो आपको 30 रुपये मिल जाएगा। ओके फाइन। अच्छा, अब क्या है, एक चीज़ अब ध्यान रखने वाली है, आपके पास शेयर कितने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास शेयर कितने? 100 है, लेकिन आपको 200 शेयर कॉल राइट करनी पड़ेगी। वो कैसे? फॉर्मूला है, हाँ, ये यानी हेज रेशियो इज योर शेयर प्राइस शेयर डिवाइडेड बाय डेल्टा। जितना डेल्टा है, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय डेल्टा बिकम्स योर हेज रेशियो। फॉर्मूला इज शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय डेल्टा। क्योंकि अब क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि शेयर जब प्रीमियम बढ़ता है वो आधा बढ़ता है, तो आपको चाहिए पूरा पैसा। तो अगर 100 शेयर है, आपको 200 शेयर खरीदने पड़ेंगे ना, बेचने पड़ेंगे, तभी तो आपको पूरा पैसा आएगा। अगर 100 शेयर पर नुकसान होगा, उसको भरपाई करने के लिए आपको 200 शेयर पे सट्टा खेलना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा जो है 0.5 का, आपका प्रीमियम तो आधा बढ़ रहा है ना, लेकिन पैसा पूरा चाहिए, तो उसके लिए आपको डबल नंबर ऑफ शेयर्स ही बेचने पड़ेंगे। बट अगर सपोज डेल्टा इसका 0.7 होता तो शेयर्स कितने होते? इतने। बट अभी हमने डेल्टा 0.5 लिया हुआ। ओके, तो अब मैं कहता हूं कि आपके 100 शेयर थे 600 रुपये के, और डेल्टा इतना है, प्रीमियम मिल रहा है इतना। अब शेयर प्राइस 590 का हो गया, सपोज द शेयर प्राइस हैज गॉट रिड्यूस टू 590, तो आपको लॉस कितना हो रहा है? 10 रुपये का, यानी लॉस कितना है? 1000 रुपये का। अब क्या हुआ कि आपने शेयर खरीदा था 600 रुपये का और 10% नीचे आ गया, सब 10 रुपये नीचे आ गया, तो आप 590 आ गया, तो आपका नुकसान कितना? 1000। बट आपने सपोज
इस स्ट्राइक प्राइस में आपकी स्ट्रैटेजी कहती है आपने 200 की कॉल खरीदी, उस पर आपने 600 का स्ट्राइक प्राइस था, प्रीमियम रिसीव हुआ 6000, और जब बेची तो क्योंकि डेल्टा 0.5 है तो उसका प्रीमियम जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, क्योंकि 30 से 25 आ गया प्रीमियम। ओके फाइन, ये जो था प्रीमियम था, 10 रुपये तो कम हुई, 10 रुपये शेयर प्राइस कम हुआ, लेकिन प्रीमियम 5 रुपये कम होगा, तो आपको प्रीमियम 25 पे आ जाएगा। तो आपने जब प्रीमियम ये कॉल बेची या बाई करी तो आपको प्रीमियम 5000 देना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 1000, लेकिन नेट गेन कितना है 0 है। इसको ध्यान से देखिए आप कि इस प्रोसेस में ना तो आपको कोई नुकसान हुआ कोई नफा हुआ, आपको जो कैश मार्केट में शेयर प्राइस नीचे करा वो आपके फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन ने उसको पकड़ लिया और आपको लॉस नहीं होने दिया। फाइन, कैसे कि आपका जो शेयर था वो 600 रुपये का आपने खरीदा हुआ था और 100 शेयर से अब क्या हुआ कि ये शेयर प्राइस 590 आ गया, तो यू आर लूजिंग इन द कैश मार्केट, 10 रुपये गिर गया, आप 1000 रुपये लूज कर रहे थे। लेकिन आपने इसको बचाने के लिए क्या करा, आप कॉल ऑप्शन मार्केट में गए, ऑप्शन मार्केट में गए, आपने पहले एक कॉल सेल कर दी उसी स्ट्राइक प्राइस पे 600 पे। जब आप सेल करोगे तो आपको प्रीमियम मिल रहा है, कितना प्रीमियम था 30 रुपये, सपोज प्रीमियम चल रहा था उस टाइम, कितना भी प्रीमियम हो, आपने मान लो 30 रुपये था सपोज, अब 30 रुपये था तो आपको जो है, अब जब आप ये प्राइस नीचे गिरेगा तो आप बाई कर लोगे कॉल, जैसे ये 600 रुपये में वही सेम नंबर ऑफ शेयर्स आप बेच दोगे, कॉल राइट करोगे, तो जब आप बाई करोगे तो आपको जो प्रीमियम होगा वो 25 आ गया था। क्यों 25 आ गया था, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 5 रुपये का, और शेयर प्राइस कितना गिरा 10 रुपये, और प्रीमियम कितना गिरा 5 रुपये। तो इसका मतलब कि अब आप जब कॉल जो है बाई करोगे तो आपको देना पड़ेगा प्रीमियम। जब आप कॉल बाई करते हो तो आप प्रीमियम देते हो, पहले आपको कॉल प्रीमियम दिया था, अब प्रीमियम देना पड़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस है वो आपका, आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी और आपको 1000 रुपये का इस स्ट्रैटेजी से गेन हो जाएगा। यू आर गोइंग टू मेक अ गेन ऑफ $1000 फर्स्ट बाई what? By selling a call and collecting a premium. Now by buying a call you pay premium. पहले आपने प्रीमियम लिया, अब प्रीमियम दिया, लेकिन जब प्रीमियम दिया था मिला था वो 6000 था, दिया 5000। ओके, और ये क्यों हुआ, क्योंकि आपका प्रीमियम कम हो गया, प्रीमियम कम होने से आपको देना कम पड़ेगा। एट अ लोअर स्ट्राइक प्राइस यू हैव टू पे, एट द सेम स्ट्राइक प्राइस यू हैव टू पे अ लोअर प्रीमियम, इजंट इट? क्योंकि प्रीमियम गिर रहा है, क्योंकि अंडरलाइंग प्राइस फॉल कर रहा है। जब अंडरलाइंग प्राइस फॉल करता है तो आपका प्रीमियम जो है 30 से 25 आ गया। ओके फाइन, तो आपको जो है इसका, क्योंकि डेल्टा 0.5 था तो प्रीमियम 5 रुपये नीचे आएगा, प्राइस 10 रुपये नीचे गिरा, लेकिन शेयर प्राइस जो प्रीमियम है वो 5 रुपये कम हुआ। तो इस प्राइस पे आप जब डील को स्ट्राइक करोगे तो आपको प्रॉफिट जो होगा वो 1000 रुपये हो जाएगा यहाँ पर। तो एट द सेम टाइम दैट मीन्स यू हैव अ रिस्कलेस स्ट्रैटेजी, बेसिकली आपने कंप्लीट हेज कर दिया अपने पोर्टफोलियो को। दिस इज कॉल्ड हेजिंग योर पोर्टफोलियो। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था हाउ यू हेज योर पोर्टफोलियो। अब कई आदमी होते हैं उनके पोर्टफोलियो बड़े होते हैं, सपोज मेरा पोर्टफोलियो सपोज मान लो कि 5 करोड़ का है, अब 5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, सो मैं बेच तो नहीं दूंगा स्टॉक को, अगर मुझे लगा मार्केट 10% गिर जाएगी, ओके, तो आई नॉट सेल, आई कैन हेज माई सेल्फ बाई गोइंग इन द फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट लाइक दिस। बट नॉर्मली लोग करते नहीं हैं, क्योंकि देयर इज अ हेजिंग कॉस्ट इन्वॉल्व। आपको प्रीमियम तो देना पड़ेगा ना हेज करने के लिए। और मुझे क्या है, अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं हेज करता मैं, क्योंकि मेरा तो लंबे समय के लिए लगाया हुआ है,